سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 148 149 150 4 آیتیں انشاءاللہ آج کریں گے. اچھے ہے اور جو ٹاپک سے ہم لوگ چل رہے ہیں اس سے تھوڑا لنک بھی آ رہے. 147 148 147 سے 148 149 150 میں بھی تھوڑا آپ کھول لیتا ہوں. منصور پڑھ لیتے. السلام علیکم. یہ ہم لوگ سن رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزمل تم پڑھ لیتے. ٹھیک ہے. اوکے. کتنے آیت ہے؟ 147 سورہ نساء. 147 147 سے 149. ہاں 150 بھی پڑھ لیجیے. اوکے. پڑھ تو لیجیے. اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور بے ایمان رہو. با ایمان نہیں بے ایمان نہیں. با ایمان سوری با ایمان رہو. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے. اور میں بھی کنفیوز ہو گیا تھا شکر گزاری اور بے ایمان کے. 148 برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے. اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکلیں. آیت نمبر 147 اللہ تعالیٰ الگ پہلو سے انسان کو اپنے طرف کر رہے, اپنی محبت شو کر رہے. جیسا باپ بچے کو کبھی ڈانٹ کے بات کرتا, کبھی پیار سے بات کرتا, کبھی بازو دکھا کے بات کرتا. ایک لہجہ رہتا اس کے موڈ, بچے کے موڈ کے اوپر. کبھی ایموشنل مومنٹس پہ اس کو کچھ غلط کام سے روکنا چاہتا, کبھی کچھ اچھے کام کی طرف موٹیویٹ کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ کی بھی محبت دیکھیے یہ نیکسٹ 2-3 آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے اور کس طریقے سے جو غلط امیج اللہ کا بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے. اور عموماً چھوٹے بچوں کے ساتھ جب ان کو دماغ نہیں رہتا, لاجک نہیں رہتی, چھوٹے بچے رہتے, کچھ بھی غلط کام کرتا کیا بولتے ہیں ہم لوگ, ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالتے. اور بچے نہیں وہی طریقے سے گرو ہوتے, کیسا ہو جاتے وہ تو پولیس والے کے جیسا بن جاتا اللہ تعالیٰ ان کے. حالانکہ وہ غلط ہے. آپ دیکھو انڈیا میں پولیس والے کو دیکھے تو کوئی محبت سے جا کے روز دیتا نہیں. پولیس والا دیکھتے چھلو گاڑی پلٹا لیتے, نکل جام یہاں بول کے بولتے. ویسا امیج آپ مسلمانوں میں اللہ کا ہو گیا. وہ محبت والا, وہ ایک باپ کی محبت, ایک ماں کی محبت کا فیلنگ ختم ہو کے خالی ڈر کا فیلنگ رہ گیا. اماں ایسا کرے تو جاب چلے آتی, اللہ ناراض ہو گیا تو پرابلم آ جاتے, بزنس تباہ ہو جاتا. اس سے اللہ کو مینٹین کر کے رکھو, پولیس والے کو ملا کے کیسا رہتا نہیں, ڈر کے رہو. تو ڈر بہت زیادہ بچپن سے ڈال دیتے اپنے کو حرام کاموں سے روکنے کے لیے. نیت اچھی رہتی, زنا ہے, شراب ہے, شراب نہیں پینا, دیکھو اللہ تعالیٰ جلا دیتا تمہارے کو, اس طریقے سے. تو ہوتے ہوتے ذرا جو ہے محبت کی فیلنگ کم ہو جاتی اور ڈر زیادہ ہوتی. اور کیا کوئی یہ چیز پسند کرتا؟ اگر آپ کے باپ کو ڈرتے زیادہ اور محبت نہیں کرتے, آپ کا باپ پسند کرتا؟ کا باپ چاہتا کہ آپ اس کو محبت کرنا, بالکل ڈرنا بھی تھوڑا.
इज्जत भी देना, राइट, और लाइट नहीं ले लेना, फ्रेंड है मेरा, कुछ भी बोल सकते। तो उसी तरीके से मगर बाप चाहता कि मोहब्बत भी रहना बोल के, और खाली डर रहा बाप का तो काम तो हो जाता, बच्चा पढ़ तो लेता, मगर बाप वैसी तरीके से नहीं चाहता रिश्ता डेवलप हो। तो उसी तरीके से अल्लाह के साथ भी मोहब्बत के जज्बात आना चाहिए, ज्यादातर एक शुक्र का जज्बात आना चाहिए, एहसास करना कि अल्लाह ताला क्या करे, उस तरीके से मोहब्बत का डेवलपमेंट होना, फीलिंग कि नमाज के लिए रोना नहीं आना, भागने की कोशिश करना कि मैं नमाज पढ़ने का इंतजार करना, जो सहाबियों में होता था, एक नमाज के बाद में दूसरे नमाज का इंतजार करते थे वो लोग। हमारे लिए एक नमाज हो गई तो अम्मा चलो रे भाई 2 घंटे छुटकारा मिल गया, कुछ तो भी अपने मर्जी का काम कर लेंगे, टीवी देख लेंगे, कुछ तो भी। मगर सहाबिया एक नमाज होने का भी दूसरी नमाज का इंतजार करते थे, ताकि अल्लाह से बात करने का उनको चैनल मिलता था। वो मोहब्बत की वजह से उन्होंने बड़े बड़े सैक्रिफाइस करते थे। तो वो डर भी था, तो डर आजकल ओवरराइड कर दे रहा, डर डोमिनेट कर दे रहा। तो उसको अल्लाह ताला ये आयत में किस तरीके से कन्विंस कर रहे कि मेरे को तुम्हारे को जला के जहन्नुम में डाल के मजा नहीं आता। अल्लाह ताला कैसे सब बेहतरीन तरीके से बोले, अल्लाह ताला तुम्हें देकर क्या करेगा, क्या मिलता, अल्लाह को क्या मजा आता। अल्लाह ताला जहन्नुम की आग बनाए मगर तुम्हारे को डाल के अल्लाह को मजा नहीं आता। अल्लाह ताला तुम्हारे को जन्नत में देखना, अल्लाह ताला तुम्हारे को तरक्की करना चाहता, अल्लाह ताला खुश होता, अल्लाह ताला को तकलीफ होती कि इतनी हिदायत के बाद में मेरा बंदा, मैं जिसको पैदा करा, जहन्नुम की आग के हवाले हो जा रहा, चाहे वो फिरौन हो, अबू जहल हो। जब अल्लाह की इंसाफ आ जाती, मगर फिरौन के साथ भी मोहब्बत थी, फिरौन भी बदलना बोल के मूसा अलैहिस्सलाम को भेजे, और मूसा अलैहिस्सलाम को बोले फिरौन नहीं सुनेगा, उसको मोहब्बत से बात करो, शायद उसके बात दिमाग में उतर जाए। इतनी कोशिश करते, उसके बावजूद भी आज हमारे दिमाग में जब फिरौन आता कितनी कहियत होती थी, फिरौन खुद को खुदा बोलता था, करता था, जालिम करता था। मगर वैसे इंसान को भी अल्लाह ताला नहीं डालना चाह रहे थे जहन्नुम, और उसको हिदायत के लिए जल्दी एक पैगंबर को भेजे। कितनी बड़ी बात है। हालांकि पैगंबर के दूसरे काम भी थे, उसके आगे चल के भी वो कौम को भी ठीक करना था जो वो जहालत में आ गई थी बनी इसराइल, मगर फिरौन को टारगेट करने के लिए, फिरौन को रात रात खत्म करे बगैर उसको सीधा जहन्नुम की आग में डालने के पहले उसको उन्हें आना चाहिए रास्ते बोल के पैगंबर को खाली बातों के साथ नहीं, मिरेकल्स के साथ, मौजिजात के साथ भेजे थे, ताकि उन्हें सुनना। इससे पता क्या चलता, अल्लाह ताला फिरौन की भी उम्मीद में था कि फिरौन भी जन्नत में चले आता। तो अल्लाह ताला किसी को जहन्नम की आग में डालना पसंद नहीं करता, वो अल्लाह की एक तरीके से मजबूरी है, इंसाफ है, वरना अल्लाह ताला तुमको जन्नत में देखना चाहता है। इसके लिए तुम्हारे को पैगंबरा भेजा, इसके लिए तुम्हारे को कुरान भेजा, इसके लिए नेक सालिहीन दोस्तों को भेजा, इसके लिए तफसीर के क्लासेस लगाए। अल्लाह ताला तुम्हारे को, अल्लाह ताला हिदायत में तुम्हारे को देखना चाहता, तुम्हारे को जहन्नुम की आग में डाल के खत्म करके अल्लाह ताला खुश नहीं होता। तो इससे पता क्या चला, अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करता है, इसका इजहार अपने को इसमें मिला कि अल्लाह ताला खुश होने वालों में। सही। अब उसके बाद में नेक्स्ट कि अल्लाह ताला आप सबसे आसान रास्ता बता रहे कि मैं तुम जहन्नुम में नहीं जाना, तुम जन्नत में जाना। और जन्नत जाना भी क्या उतना मुश्किल है, आसानी है। क्या करना है, अगर तुम शुक्र गुजारी करते रहो और बा ईमान रहो, अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला है और पूरा इल्म रखने वाला है। यहाँ पे अल्लाह के 2 नाम आए, शाकिरुन अलीमा। अलीम बोलते आलिम को बोलते इल्म है, शाकिर का मतलब क्या है। मैं लास्ट क्लास में शाकिर नाम आया था, कोई बोलिए शाकिर का मीनिंग क्या है। शुक्रगुजारी कबूल करने वाला। माशाल्लाह, एकदम सही है, स्पॉट ऑन। कम चीज को भी अप्रिशिएट करने वाला और गहराई में उतरे, एकदम करेक्ट था आपका आंसर। उसके अलावा बात करने का ये है कि बड़े बड़े चीजा तो है एक्सपेक्टेशन, मगर छोटे चीजों को भी वैल्यू देते। जैसा कई बार छोटे बच्चे रहते घर में, क्या करते, फर्स्ट टाइम कुछ मैगी वैगी पकाते। तो मेरी बच्ची है, कुछ जो है अब्बू को भूख लग रही तो मैं, मामा देर करे, मैं जरा मैगी बना देती हूँ अब्बू के लिए। तो मैगी बनाती, कच्ची पक्की रहती, उतनी अच्छी नहीं रहती ना भाई, क्योंकि छोटी बच्ची है, मगर वो मोहब्बत से लेके आती और खा के देखते नमक ज्यादा है, मगर मुंह पे नहीं बोलते, कहीं उसका दिल टूट जाता। क्या बोलते, बहुत अच्छा बना है बेटा, बहुत अच्छा बना है बोल के खाते, 2-3 चमचे उतरते नहीं गले के नीचे, मगर फिर भी बच्ची का दिल तकलीफ होता है। इसको बोलते शाकिर। अल्लाह ताला शाकिर है,
करते, और रिटर्न में फिर मैं मरियम को गिफ्ट देता हूँ, मरियम बहुत अच्छा खाना पकाया आज, अब्बू का पेट भर दिया, मैगी बनाई, ये लो मेरे मरियम की तरफ से छोटा सा गिफ्ट, तो उन्हें उससे मोटिवेट होती। नेक्स्ट टाइम जल्दी अब्बू मम्मा मेरे को जल्दी जो है खागिना भी बनाना सिखाओ, मैं अब्बू के लिए खागिना बनाती हूँ। अगर उसको मैं झटक देता उधर ही, क्या बेकार है, उसका इंटरेस्ट ही चला जाता, मैं दोबारा कोशिश नहीं करती। तो उसके लिए क्या करते हैं, हालांकि उतनी तारीफ के काबिल नहीं, उतनी बेहतरीन चीज नहीं है, फिर भी उसको कबूल करते और उसके गंदगियों को हटा देते, नमक ज्यादा भरा हुआ टेस्ट कुछ भूल के उसकी मेहनत और जो पॉजिटिव, अच्छा दिखा, कलर बहुत अच्छा आया, सॉफ्ट बनी मैगी, घटने थी ज्यादा, तो मतलब मैं पॉजिटिव चीजें ढूंढ रहा हूँ और नेगेटिव को इग्नोर कर रहा हूँ। नमक जो है पूरा तरीके से डोमिनेट कर चुका था, मगर उसके बावजूद भी मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जैसा भाई सॉफ्ट तो गली, टेस्ट भी अच्छा ही है, और जो है कलर भी अच्छा आया, और पानी भी ज्यादा नहीं था, ये सब चीजों से उन्हें खुश हो जाती, क्या रहा इतना अच्छा बना बोल के। तो पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट करके मुंह में डाल के खाने को शाकिर बोलते, हालांकि उतना डिजर्विंग नहीं था, फिर भी अल्लाह ताला जो है खूब और उसकी इज्जत दिए, जितनी उसकी इज्जत है उससे ज्यादा इज्जत दिए, कम करे तो भी ज्यादा करे बोल के आंखों को लगा लिए, बोलते नहीं अम्मा मेरी बच्ची पहला मैगी बनाए, उसकी फोटो ले लेता हूँ मैं, आंखों को लगा लेता हूँ मैं, याद कर लेता हूँ, ये क्या है, उसको आंखों को लगा लेना। उसी तरीके से अल्लाह ताला हालांकि बंदे गुनहगार है, इतना अल्लाह के एहसान खाते, अल्लाह के हवा लेते, अल्लाह के हुक्म से बॉडी चलती, अल्लाह के हुक्म से बिजनेस चलते, पैसा कमाते, उसके बदले में हम दिए सो शुक्र कुछ भी नहीं है, उसके बदले में हम जो इबादत करते कुछ भी नहीं है, उसके बदले में जो नमाज पढ़ते कुछ भी नहीं, मगर उसको भी अल्लाह ताला साफ करके उसके गंदगियों को हटा के कबूल करके जितनी इज्जत देना है उतनी ज्यादा इज्जत देता, उतना ज्यादा सवाब देते, उसको शाकिर बोलते। तो हम लोग पहले भी डिस्कस, अब एक नए एग्जाम्पल के साथ शाकिर है। तो अल्लाह ताला अब इस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला क्यों अपने आप को शाकिर बोले, पहले अल्लाह ताला क्या बोले कि हम तुमको जहन्नुम की आग में डाल के मजा नहीं आता, हम तो तुम्हारे को जन्नत, और जन्नत में भी कैसा आसानी से शाकिर बन के कबूल करके तुम्हारे को जन्नत भेजना चाहते, मतलब तुम्हारी मैगी उतनी अच्छी थी, तुम्हारे नेकियां उतने अच्छे नहीं थे, फिर भी हम नजरअंदाज कर दिए उसके खामियों को और खूबियों को ओवर अप्रिशिएट करके, ज्यादा वैल्यू देके, 7 लाख से मल्टीप्लाई करके, नेकियां बढ़ा के तुम्हारे को जन्नत में डाले हम। तुम्हारे शुक्र को पकड़ के, अप्रिशिएशन को इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करके हम जन्नत में लाए, हम शाकिर थे ना। हम अगर हम जन्नत में नहीं डालना रहता तो तुम्हारे को टाइट करते, हर चीज को मैक्रो मैनेजमेंट करते, हर चीज को खोल खोल के देखते, तो तुम्हारी तो मैगी बेकार ही थी, तुम्हारी तो मैगी खाने लायक ही नहीं थी। मगर हम कबूल करे, हम ज्यादा वैल्यू दे के कबूल, जिसकी वजह से तुम जन्नत में चले गए। तो जब खुदा शाकिर है और जन्नत में जाना आसान है, तो जहन्नुम की आग में कहीं को जाते। कोशिश करो, कम भी हुआ, छोटी भी नेकी हुई, उतनी अच्छी नहीं हुई, करते रहो, क्योंकि अल्लाह ताला शाकिर है, छोटे नेकियों को भी कबूल कर देता। कई बार शैतान दिमाग में डालता है तुमसे नहीं होते, वो देखो उन्हें कितनी क्या कर रहे, उन्हें देखो रात में ताजुद, तुम क्या कर रहे, छोड़ो अब ये करके भी क्या मिलने का है, वैसे भी चांसेस नहीं था तुम्हारा, तो बोलो के साथ कम्पीट भी नहीं कर सकते। अबू बकर को देखो, उमर को देखो, तुम्हारे दादा को देखो, तुम्हारे नाना को देखो, कितने नेक थे, तुम क्या है, तुम्हारा तो चांस भी नहीं है, तुम तो उनके पैर के जूते भी नहीं आ सकते, करके भी क्या फायदा, वैसे भी कम ही पड़ता, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला शाकिर है, अल्लाह ताला जो है कम नेकियों को भी जो है उसके खामियों को हटा के कबूल करने की ख्वाहिश करता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे को जन्नत में देखना चाहता। अल्लाह ताला सैडिस्ट नहीं है, अल्लाह ताला साइको नहीं है, अल्लाह ताला को पुलिस वाले की तरह नको देखो कि हमेशा चोरों को पकड़ने को बैठा हुआ है, नहीं, पुलिस वाले मोहब्बत भी करते। मैं परसों टैंक बंड पे क्या कि इवेंट था, ट्रैफिक पुलिस वाला खाली उंगली दिखाना था, मगर जो है गाड़ियों को भी संभाल रहा था, पार्किंग बराबर सेट कर रहा था। एक औरत थी, उससे स्टैंड नहीं निकल रहा, तो पुलिस वाला आगे बढ़ के गाड़ी निकाल के रोड तक ला के दिया। देखो तो शॉकिंग दिखा रहे, पुलिस वाले ऐसे भी रहते क्या बोलते, क्योंकि इमेज उस तरीके से बन गया। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला का वो जल्लाद के जैसा इमेज, जो गुनाह करते पकड़ लेता और तुमको लटका देता और अजाब हो जाता और तुम्हारे को जिंदगी फिर गरीब मुश्किल हो जाती, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला कई बार तो चांस देता और तुम्हारे नेकियों को कबूल करता। तो ये बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए अल्लाह के साथ, ये अल्लाह ताला आयत में यहाँ पे जो है एम्फसाइज कर रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है मालूम, सबसे मिनिमम बड़े बड़े नेकियां भी नहीं करो तो शुक्र तो भी करो, क्योंकि शुक्र भी तुम्हारे को बहुत दूर लेके चला जाता। तो यहाँ पे शुक्र की तरफ एम्फसाइज करें, क्योंकि शुक्र को लोग नजरअंदाज करके बहुत बड़ी नेकी है।
अगर तुम आयत को पढ़ेंगे, आयत नंबर 147, अगर तुम शुक्र गुजारी करते रहो और बा ईमान रहो, सिंपल दो चीजों पे हाईलाइट करे अल्लाह ताला, शुक्र गुजारी, बा ईमान, दो चीजा, छोटे से छोटे चीजा पिक करे, ये दो चीजा भी तुम्हारे लिए काफी हो सकते, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला है, बहुत कदर करता है ये दो चीजों को, तुम्हारे नेकियों की बहुत अहमियत है अल्लाह के पास। अल्लाह ताला उसको गौर से, शुक्र कैसे करें? शुक्र का तुम बोलो, अब तक 10 क्लासों में 10 बार बात करे, शुक्र के 3 कैटेगरी से 3 लेवल पे करना चाहिए, जबान से करना, तुम हाँ, बताओ। वो तो है, हाँ ठीक है, जबान से, हाथ से, एक्शन से। हाँ, एग्जाम्पल दो, कैसा बेहतर तुम्हारे लेवल पे तुम कैसा कर सकते शुक्र अल्लाह का, जहाँ पे इतनी तारीफ वो उसी पे आ रहा था कि फॉर एग्जांपल दिन आज एक अब जिस तरह से इस आयत में बने अल्लाह ताला के भाई शुक्र करो और बाईमान रहो, यानी इससे मुझे ये समझ में आ रहा कि ऑन डेली बेसिस, अब जैसा कि तुम बोले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी नेमतें हम खा रहे हैं, हवा खा रहे हैं, सेहत अच्छी है, कारोबार चल रहा, नौकरी चल रही, वालिदैन अच्छे, बेटे अच्छे, सेहतमंद, सब हर चीज, इतनी नेमतें दिन भर में ले ली अल्लाह ताला, तो मतलब शुक्र भी ऑन डेली बेसिस, जबान से और जो है सो हाथ से और एक्शन से। तो अब जबान से मैं इस पे आ रहा था कि जबान से जो है सो मतलब सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से तुम पहले बताया था, दिल से अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नमाजें भी पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पे कि भाई आज का दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरे ही फजल से अच्छा गुजरा, तेरी नेमतें हमने यूज की करके। सही। ऑन डेली बेसिस पे बोल रहा हूं मैं, डेली बेसिस पे, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस। और एक पॉइंट ये है कि सबसे छोटी चीज शुक्र है, और शुक्र भी नहीं करे तो मैं चीज खींच लेता हूँ, बोल रहे हैं। इसलिए तुम देखो कई बार जॉब चलते चलते अल्लाह ताला जॉब खींच लेते, बिजनेस अच्छा चलते चलते बिजनेस डाउन कर देते, क्यों? क्योंकि तुम उसकी शुक्र नहीं करे, मिनिमम शुक्र था, उसके ऊपर तो और बहुत कुछ कर सकते थे, मोहब्बत, दीनदारी, हिदायत के रास्ते पे चले जाना, अल्लाह के दीन के हो जाना, फला 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 बहुत था, मिनिमम तो शुक्र भी नहीं करे तो अल्लाह ताला बोले तुम हकदार ही नहीं है, तो मिनिमम भी टैक्स दे पे करेंगे तो कैसा होगा, वो चीज को कैसा एंजॉय करते तुम? मिनिमम भी शुक्र नहीं करे तो वो खींचे जाते। इसलिए कई बार कोई चीज अगर खींचे गई, वो चीज एंजॉय करने के बाद में अगर अल्लाह ताला ले लिए तो गौर करो, क्या हम इस चीज की शुक्र अदा नहीं करें, इसका एहसास नहीं करें, हमारा हक है समझे, हमको मिलना था समझे, मेरी मेहनत की वजह से मिला, मेरी इंटेलिजेंस की वजह से मिला, ये चीजें आपको शुक्र करने से रोकते, क्योंकि तकब्बुर पैदा करते, और ये चीजें अगर हो जाए तो अल्लाह ताला वो नेमत छीन लेते। तो जब कोई चीज नेमत छीने जा रही तो अपने गिरबान में झांक के देखो, क्या वो नेमत की मैं वैल्यू करा नहीं करा। लोग 2-2 साल नौकरी करते, एकदम नौकरी चले आते, तो अल्लाह ताला जब उसकी वैल्यू बताना चाहते कि मेरे तरफ से थी, तुम्हारे इंटेलिजेंस से नहीं थी, मैं ही दिया था, और मैं जब तक चाहूँ रख सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, मैं उसका ओनर हूँ, तुम उसके ओनर नहीं है, तुम उसके वॉचमैन है खाली। और अपन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बारे में पढ़े थे कि हर चीज तो जमीन आसमान में जो तो मेरी है, वो मैं चाहे तो दे सकता हूँ, मैं चाहे तो ले सकता हूँ। मगर कई बार अल्लाह ताला जो है दुनिया से मोहब्बत निकालने के लिए भी कभी भी दुनिया की चीज भी छीन ले सकते, वो एक अलग सिनारियो हो, वो कभी डिस्कस करेंगे। मगर ये सिनारियो को आप, ये एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आप उसके एहसास नहीं करे, उसका शुक्र अदा नहीं करे, तो वो चीज खराब हो जाती, वो चीज सड़ जाती। अगर आप फ्रेश एप्पल को डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिए, उसको इस्तेमाल नहीं करे, उसको फ्रिज में नहीं रखे, क्या होती? सड़ जाती, बदबू आती, फिर खाए तो पेट खराब हो जाता, फेंक देना पड़ता, पैसे का नुकसान। तो क्या करना, उसकी इज्जत क्या है? एप्पल लाए, उसकी इज्जत क्या है? एप्पल को खाओ, एप्पल लाए नहीं खाए, आधा रख दिया, फ्रिज में रख दो, ये उसकी इज्जत देना है। उसकी बेइज्जती कर दिए, उसको वैल्यू नहीं है, उसको भूल गए, तो चीज सड़ जाती, तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो जाती। इसलिए अल्लाह की नेमत का अगर शुक्र अदा नहीं करेंगे तो नेमत जहमत बन जाती, वो चीज तुम्हारे को बदबू पैदा करती, वो चीज पेट को खराब करती, कमरे में बदबू भर देती, तो वो चीज से तकलीफ होना शुरू होती। अगर वो चीज तकलीफ दे रही तो मतलब तुम उसका मिनिमम से मिनिमम जो है, जो सबसे आसान चीज करना था, उसका शुक्र अदा नहीं करे, बोल के यहाँ पे हम लोग को जो है
रियलाइज होता है। आदिल भाई मगर यहाँ पे पॉइंट की आयत क्या आती है एंड में कि बा ईमान, ईमान के साथ शुक्र अदा करो, तो ईमान के साथ शुक्र अदा करने की पॉइंट पे नहीं करा। हाँ, बाईमान के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि अगर आप कितने भी नेकियां करें, अगर आप बाईमान नहीं है, आपके अंदर दिखावा है, शिर्क है, तकब्बुर है, तो आपकी वैसे भी कोई नेकी अल्लाह ताला कबूल करने वाला नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाईमान रहना बहुत जरूरी है, और ये चीज खत्म हो गई तो सबको नलीफाई कर देती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपने क्लास के जो उम्मीद वाले हैं इंशाल्लाह ये सब गंदगियों से निकल गए हैं, तौहीद पे है, शिर्क के चीजों पे नहीं है, जो है गलत अकीदों पे अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइप के जो पहले के जमाने में बहुत चलते थे इंडिया में, पाकिस्तान में, वो उससे बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हिदायत दिया, फिरक़ेबाजी में नहीं है। फिरक़े अगर जिस फिरक़े में पैदा हुए फिरक़ा गलत है तो उसको फिरक़े के बियॉन्ड भी बात करते हैं, हक की भी बात करते हैं। मगर तो फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो खराब कर देती है, जो बाईमान में इंक्लूडेड है, वो है तकब्बुर नहीं करना। मैं आज करा, मैं आज खैरात करा, मैं आज इसका शुक्र अदा करा, उन्हें नहीं करा, मैं करा, जो मैं अपने तरफ से करा वो भी अल्लाह की हिदायत थी जिस वजह से अल्लाह ताला करा। तो वो बाईमान में कई लंबे आते, तो मोटे मोटे मैं 2-3 चीजों पे फोकस करा हूँ। आयत जरा लंबी है, मगर मेरा और मसीह भाई का प्लेटफॉर्म सोचने का और नॉलेज अलग लेवल पे है, मगर मास्टर्स अलग लेवल पे होते हैं। और जो है मेरे को कभी कभी दिखता मसीह भाई और थोड़े है साथी अपने उन लोगों के साथ एक अलग क्लास होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है बहुत हाई अच्छे लेवल पे है पहुंच गए, मगर थोड़े लोग जो है बिगिनिंग में रहते हैं, थोड़े लोग जो है उतनी गहराई पे नहीं जा सकते, उतना गहराई उनके लिए बाउंसर हो जाता सर के ऊपर। तो थोड़े चीजों को मसीह भाई मैं थोड़ा सा हल्का टच करके छोड़ देता हूँ और ज्यादा एक टॉपिक को लंबा खींच देता हूँ। तो मगर आप और हम अगर बैठे तो हम लोग को मजा आता, एंजॉय करते, अगर हम हर चीज में डीप में चले जाए तो मजा आता, वरना क्योंकि नॉर्मली दिखता। तो इसके लिए सबको मैनेज करते हुए मसीह भाई कोई पॉइंट को मैं एलाबोरेट करता हूँ। इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू बैठे जब या क्लास के बाद में इंशाल्लाह अपन अलग कर सकते हैं फिर। लेकिन पॉइंट तो रेस करे, अच्छी चीज है मसीह। अच्छा, उसमें आदिल भाई और एक और चीज मैं समझ रहा था ये आयत से कि अल्लाह ताला शुक्र अदा करो बोले बाईमान के साथ, मतलब अगर कोई आदमी का कुछ नुकसान भी हुआ तो जैसा बोलते कि अगर कुछ अच्छा हुआ या बुरा अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, यानी कि अल्लाह का शुक्र, तारीफ अल्लाह की करो। तो अगर अब तुम्हारा नुकसान भी कुछ हो गया, अल्लाह का शुक्र है भाई चलो हो गया बोल के ऐसा बोलना, शायद वो हो सकता है कि भाई बाईमान के साथ तुम्हारा नुकसान भी हुआ तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, ऐसा भी समझ सकते क्या आयत को? नहीं, पॉइंट तो आपकी करेक्ट है, वैलिड है, मगर इस आयत से वो मीनिंग नहीं है। ये आयत किस कॉन्टेक्स्ट पे चल रही मालूम है? ये आयत का हर एक आयत का एक मेन स्पिरिट रहता, उसके सब पॉइंट्स बाद में निकाल सकते हैं, मगर मेन एजेंडा है कि अल्लाह ताला बोल रहे मैं तुम्हारे को जहन्नुम में डाल के नहीं फताना, मैं तुम्हारे को छोटे छोटे चीजा करो बोल रहा हूँ, छोटे चीजा करो, मैं तुम्हारे को जन्नत में लेके चले आता हूँ। ये है मेन एजेंडा। तो ये एजेंडा के अंदर ही तो वो आयत को अपन लिमिट करना। आप जो बोले थे वो भी आयतें हैं कुरान में, मगर वो पस मंजर अलग है फिर। तो जब वो आयतों का मीनिंग आएगा, यहाँ पे अल्लाह ताला जिसको सिंप्लीफाई कर दे रहे, आसान है, मेरे को मजा नहीं आता, तुम छोटे छोटे चीजा कर दो, उसको भी मैं अप्रिशिएट कर लेता हूँ, वाव बोलता हूँ मैं उसको तराजू में हैवी कर देता हूँ, क़यामत के दिन वजनदार बना देता हूँ और तुम्हारा जन्नत आसान हो। इसके पर एक प्यारी हदीस जो हम लोग पहले कई बार बोले, मगर फिर मैं उसको बोलना चाहता हूँ एक अलग तरीके से। वो आदमी जो 99 मर्डर करा था, बुखारी मुस्लिम में है, आज भी मैं फ्रेश हो जाती तबीयत की 99 मर्डर करने के बाद में भी उन्हें मगफिरत के लिए ढूंढ लेते हुए दूसरे आदमी के पास गया, तो उसको भी समझ में नहीं आया, तो उन्हें क्या बोला, वो दूसरे गांव को जाओ, वहां पे कुछ नेक अल्लाह वाले हैं जो कुरान वगैरह पढ़ लेते बैठे, उनके सोबत में जाओ, उनके पास जाओ, हो सकता तुम्हारे तौबा कबूल हो जाए। तो उन्हें वो जमाने में सफर करना मुश्किल है, उसके बावजूद भी जो भी खाना सावन क्या ले लेके, क्या पैसे वाला था कि नहीं था, कि कितनी तकलीफ में, मोस्ट ऑफ द तकलीफ में था होगा, क्योंकि उसकी सैक्रिफाइस को अल्लाह ताला ज्यादा कबूल करके दर्जी ज्यादा दिए, ज्यादा शाकिर बने, तो मतलब उसकी तकलीफात अलग ही थे। मतलब उसके पास पैसे भी नहीं थे होंगे, झाड़ पे कुछ भी पत्ता मिला या फूल फल मिला खा लेके जीने वाला वैसा स्ट्रगलिंग डेज थे होंगे, उसके बावजूद भी उन्हें वो सफर करा, वो जमाने में पानी नहीं, होटल नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, और उस बीच में उसकी जान निकल गई। तो अल्लाह ताला उसके इतने से नेकी को,
کہ انہیں حالانکہ مغفرت حاصل بھی نہیں کرا, مغفرت کرنے والے لوگوں کے پاس بھی نہیں گیا, وہاں پہ 1 سال بھی نہیں ڈیپینڈ کرا, بس وہ جو ایفرٹ کرا اس کو اللہ تعالیٰ شاکر بنا کے اس کو قبول کر کے اتنے ملٹیپلائی کر کے اس کو جنت کی کیٹیگری میں ڈال دیا. تو اس سے اس آیت اور اس حدیث سے پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے میراکل کر کے چھوٹے سے چیزوں کے وجہ سے بھی جنت میں ڈالنے کی آرزو رکھتا ہے, تمنا رکھتا. مطلب کیسا اس کو میں جنت میں ڈالوں, بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھونڈتے رہتا. اور کچھ اچھی ایکسٹراڈنری ایک نیکی مل گئی 100 روپے کی, اس کو 1 لاکھ روپے بنا دیتے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے کہ میں تو الٹا ڈھونڈ رہا ہوں, تم تھوڑے تو کرو, چھوٹے تو کرو, اچھے سالڈ کرو, چھوٹے ہی صحیح, بڑے 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 جہادہ نکو کرو, چھوٹے ہی صحیح اچھے کرو. میں کھینچ لیتا ہوں, ان کو کھینچ کے بڑا کرتا ہوں میں, اور جو ہے ترازو میں ڈالتا ہوں میں. تو اس سے اللہ کی طرف محبت کی طرف پلٹنا, نہ کہ اپن وہ پولیس والے کو دیکھ کے جو ڈر کی فیلنگ ہوتی. حالانکہ ڈرنا بھی چاہیے, جیسے ایک باپ سے ڈرتے, کتنا بھی ہو باپ کے سامنے پیر پہ پیر ڈال کے ادھر آ بول کے تو نہیں بولتے نا, کتنی بھی محبت رہو یہ ایک ریسپیکٹ کو کراس نہیں کر سکتے, رائٹ, ماں باپ کے ساتھ. اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ محبت کتنی بھی رہو, ان کے خاطر لو بھی رہو, مگر جو ہے ریسپیکٹ اور فیئر تو ہونا چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ فیئر جو ہے تم کو برائیوں سے روکتا بس, مگر نیکیوں کی طرف لے کے جاتا محبت. اس لیے محبت 70% رہنا, 30% فیئر رہنا, یہ میرا ایک نمبر پیدا کرا ہے, قرآن حدیث میں نہیں ہے, میری طرف سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ فیئر صرف 30% رہے. فیئر تم کو گناہوں سے روکتا, مگر 70% نیکیاں کرنے کے لیے لو رہنا, اللہ سے محبت رہنا, کہ جو ہے اللہ کی محبت میں تمہارے کو مزہ آ جاتا, نماز پڑھنے میں مزہ آ جاتا, غریبوں کو کھانا کھلاتا مزہ آ جاتا, قرآن پھیلاتے, کہ اللہ کے محبت میں کرتے نا, محبت زیادہ موٹیویٹ کرتے آپ کو جو ہے ایکسٹراڈنری اسٹیپس اٹھانے میں. تو محبت کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے, اللہ تعالیٰ اپنے محبت والے انداز کو اور چہرے کو یہاں پہ کوشش شو کر رہے. تو یہ ہے اس آیت کا پس منظر. ایک آیت الحمدللہ بہت لمبی ٹائم چلی گئی. ایک اور ایک یہ آیت سے ریلیٹڈ ایک چیز تھی, جس طرح سے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک نیا نام سیکھنے کو ملا, شاکر. چھوٹی سے چھوٹی, ویسے بھی ہم نے نیکیاں ہوتے کتنا بھی پیورٹی سے کرو وہ اس کے لیول کے رہتے بھی نہیں, تو اس کو بھی اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے بھی شاکر کا اس کا جو نام ہے وہ امپلیمنٹ کر کے اپنے کو جنت میں لے کے جاتے. فار ایگزامپل, اب کیا میرے میں اور ہم سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو کوالٹی ہے شاکر, وہ ہمارے میں بھی آنا چاہیے آیت پڑھنے کے بعد, کہ ہم بھی مطلب دوسروں کو اپریشیٹ کریں, چاہے وہ لوگ چھوٹا بھی کام کریں. وہ لوگ فار ایگزامپل اکثر ہم لوگ ادھر کیا کرتے کہ ایک خاص کر میں مطلب اپنے پاس جو اپنے معاشرے میں لیڈیز کو لے کے بہت سارے مطلب وہ ارے انو ایسی ہے مطلب ایک کیا غلطی ہو جاتی تو وہ لے کے مطلب بہت ہی زیادہ بولتے نا کیریکٹر اساسینیشن کے ایسا بہت کرتے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس وقت پہ کیسے بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے شاکر, وہ صفت اپنے میں لا کے نہیں اپریشیٹ بھی کرنا. ایسا نہیں ہے کہ میں ہمیشہ خاص کر جیسے کہ کام والیوں کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے, کام والوں کے ساتھ کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. شاکر کا جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو بھی شاکر بنو بولے, اور اس سے کیا ہوتا, تم انسان اپنے سے نیچے سے لوگوں پہ رحم کرے تو تمہارے اوپر جو ہے اللہ تمہارے کو رحم کرے. تو شاکر بھی جو ہے تم شاکر بنے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ شاکر بنتا. یہ ایک بہت اچھی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو ایکچولی اس آیت میں نہیں ہے مگر کئی جگہ قرآن پہ ہے. تم دوسروں پہ رحم کر, ان کی چھوٹے چیزوں کو اپریشیٹ کرے. جیسا میری بچی کو میں اپریشیٹ کرا, حالانکہ میں اسٹرکٹ رہتا اور آنےسٹ رہتا تو اس کا دل ٹوٹتا تھا, تو میں ایسا کرا نا. تو اسی طریقے سے تم جیسا لوگوں کے ساتھ کرتے رہتے نا, اللہ تعالیٰ کو پسند آتا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی شاکر بنا. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم جیسا لوگوں کے ساتھ رویہ کرتے, اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ بھی رویہ, چاہے تم نماز پڑھ رہے ریلیونٹ ہے,
लोगों के साथ नरमी का मामला करते, दरगुजारी का मामला करते, और नेक्स्ट आयत उसी के ऊपर आने वाली है। वैसा Okay. करे तो ही अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र करते, तुम्हारे गलतियों को कवर अप करते, तुम्हारी छोटी नेकी भी कबूल करते। वो अलग है, इस आयत में नहीं है, मगर दूसरी आयतों में उसका डिस्कशन आता। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट आयत पे जाएंगे। तो आयत नंबर अब आदिल यहाँ भाई पे टाइम हो गया मेरे ख्याल से, आज 9:30 हो रहे अभी। चलिए आज रैप अप कर देंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। रैप अप कर सकते हैं और कल इंशाल्लाह अपन कंटिन्यू करेंगे, इंटरेस्टिंग आयत है आगे की। इंशाल्लाह कल